حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے یا کہارو، پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے لوگوں کا تصور، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں، خوب کریں، بہت زیادہ کریں، چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانے ہیں۔ اور آخری تصور کریں جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں، یا قہار یا قہار یا قہار۔ جذبے سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں، چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں۔ یا کہاروں کے وجدان کے ساتھ، یا کہاروں کو درد کے ساتھ، یا کہاروں کو غم کے ساتھ، یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ۔ یہ طریقہ بتاؤ، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں، 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے۔ اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں، تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، اوکی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اوکیلا چلیاں چوڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاوے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی۔ اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے، وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں۔ آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح، فرمائے جس تسبیح سے کمال ملا پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے عروج ملا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں؟ تسبیح نہ چھوڑیں۔ ایک تسبیح کو یا کہارو پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک، 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے، پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ۔ پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا، سبحان۔ پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنی علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح، تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیری سانس اکڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس، کر کے دیکھ تو صحیح۔ اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح، فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح۔ میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے۔ رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی، سننے کی بات ہے، تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک، کچھ اور بھی تھے۔ عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کے داستانیں، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے۔ تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا۔ جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو سنو غور سے ذرا۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی۔ تو وہاں سے رات کو پہنچے، اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلے، تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے کہنے لگے تھکا ہوا، اچھا چلتے چلے۔ ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں، جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے، نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے۔ ایسے نہ تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے، بازو کی ٹیک لے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے ایک بات کہی، سوال بھی سن لے، جواب بھی سن لے، سوال بھی زندگی بھر نہیں بولے گا، جواب بھی موج کی ہچکی لے لے تو بھول جائے، نہیں بھولے گی۔ میں نے عرض کیا کوئی خاص عمل بتا، کوئی خاص دعا بتا۔ ایسے تھوڑا سا منہ موڑ کے نا میری طرف ایسے ہلکا سا کہنے لگے حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، سننا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، میرے حضور کی خاص چیز ہوتی، 3 دفعہ دہراتے تھے میرے کملی والے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات، مقبول موٹے کی کیفیت۔ اللہ تیری قبروں کو آباد اور شاد کر۔ تو نے ہمیں زندگی کی کوئی مانگنے کی کیفیت بتا دی، دعا الفاظ کا نہیں، کس کا نام ہے؟ بس مجھے سمجھ آ گئی، وہ ایک سبق اس درویش کا کافی تھا۔ کہتے ہیں حضرت ہم فتنوں کے جال توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا تو وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے دل کو بہلا رہا ہے اور مجھے بہلا رہا ہے۔ مقبول موٹے سے آپ پوچھ کیسے کیا جاتا ہے، یا ابھی دیکھ ہم نے تجرباتی طور پہ تھوڑا سا اپنے وجدان کیفیات کو جمع کیا ہے،
जमा करने के बाद चंद लम्हे या कहारो पढ़े। दुआ अल्फाज का नहीं, कैफियत का नाम। हाँ, तो आप ऐसा करें, 11 तस्बीहां या 8 तस्बीहों का वक्त तय कर लें, इतने वक्त में पढ़ेंगे, और फिर अपने मकासद, अपने मनाजिल, अपने महासिल, अपना जो हासिल, जो जिन बलाएं, वबाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियों से नजात चाहते हैं और फितनों के जाल से नजात और तोड़ना चाहते हैं, फिर अपनी तवज्जुहात को करें जमा, कैफियत को करें जमा, दिल को करें खाली और लाएं सिर्फ अल्लाह, और दरूद पाक पढ़ के फिर पढ़ना शुरू करें या कहारों को इस अंदाज से, आज जिसकी हमने थोड़ी सी मश्क और एक्सरसाइज की है, आज थोड़ी सी हमने जिसकी मश्क की है, इस अंदाज से पढ़ना शुरू। फिर देख तो सही, कांपता है दिल तेरा, अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाये नाकामी तू, मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार मर जा, दुनिया की रंज राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा, इस बहरे बेकरा में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूबा और पार कर जा, पढ़े पूरे वतन की सलामती के लिए, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, वकफा बिल्लाहि वलिय्यम, वकफा बिल्लाहि नसीरा। या कहारों को दर्द से पढ़ें, या लतीफो या वदूद अभी पढ़ेंगे, आज इस दर्द से पढ़ के देखें तो सही, अल्लाह को मना के देखें। आज तक जिंदगी में दुआएं पढ़ी हैं, अल्लाह भला करे अबकरी का तस्बीह खाने का, ये मुझे आपको दुआएं मांगने का सलीका और तरीका बता। आज तक दुआएं पढ़ी हैं, मैं फिर कह रहा हूं पढ़ी हैं, दुआएं मांगी नहीं है। आज दुआएं का मांगना मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। फकीरों से सीखा जाता है दुनिया भी आखिरत भी, जीना भी मरना भी फकीरों से सीखा जाता है। अल्लाह हमें कदरदानी अता फरमाए, कदरदानी अता फरमाए। फकीरों से सीखा जाता, फकीरों से। आज पढ़ेंगे पर दर्द से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, या लतीफो या वद थैली है ना, हाँ, पर दर्द से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे। ऐसा दर्द होगा, अच्छा उस दर्द और विजदान के मकबूल मोटे का दर्द याद रहेगा। हाय अल्लाह खुश रखे, क्या फकीर था और हमें क्या उन्वान दे गया। नाम पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम मकबूल मोटा है। अच्छा वो पूरे लंबे सफर मोटरसाइकिल पे करता था, बस पे नहीं चढ़ सकता था। मेरे पास फैसलाबाद से कहां दूर से दवाई मोटरसाइकिल पे लेने आता था, बस पे नहीं चढ़ सकता, बस की सीट पे बैठ ही नहीं सकता था, दरवाजे से गुजर ही नहीं सकता, बेचारा ज्यादा चल ही नहीं सकता, पर था कोई अल्लाह का वली। जिस्म तो अल्लाह ने बनाया ना, उसको मरूसी मोटापे होते हैं, बेबहा लोगों के मरूसी मोटापे होते हैं। पैसे वाले थोड़े से टक लगा के अपने मोटापे को ये का वो तो फकीर था। मैं बुखारा समन गन गया तो मेरे साथ एक कलंदर था, वीडियो बना रहा था, तो मैं चलते हुए बढ़िया, वो उसका जिस्म भारी था, मुझे कहने लगे हजरत आपकी वीडियो में सांसों ये भी आवाज आती है। मैं क्या करो, मोटा मेरे नाल है। आपको इल्म है कि आज हमने हजरत अली की दुआ सुन, किस दर्द से, किस गम से, और उन्होंने क्या कहा, और दुनिया के सारे लोगों क़यामत तक आने वालों, जब कोई गम हो, दर्द हो, मुश्किल हो, मसला हो, परेशानी हो, मैं तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। और वो हस्ती कौन है? बोलो बोलो बोलो, उस हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। तर्जमे पे गौर करना, तर्जमे पे गौर करना, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। पहले हम दरूद पाक पढ़ेंगे, तर्जमे पे गौर करना, और हस्ती से हैदर कर्रार, अल्लाह अकबर, दामाद रसूल, उस हस्ती से मांगना सीखें। क़यामत तक के लिए हमारे साथ एहसान कर गए, एहसान कर गए कि जब मुश्किल हो, जब गम हो, जब दुख हो, तो मैं तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखाता हूं, वो लफ्ज देता हूं, वो अल्लाह है, उससे मांगना सिखाता हूं। हमारे साथ दामाद रसूल खयानत नहीं कर गए, अमानत हमें अल्लाह के गैर के हवाले नहीं कर गए। किसके हवाले कर गए? पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। तवज्जो से उंगली फेरते हुए पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जब अलगौस आए अपनी मुश्किलों मुफस्सलों का तसव्वुर करेंगे, और उसके बाद यह उंगली आंखों और दिल पे फेरेंगे, अपने घर में भी इसकी तवज्जो करेंगे। आज बाब नंबर 19 से पढ़ना सुनना शुरू करेंगे। बाब नंबर 19 से सुने। क्या अल्फाज, क्या दर्द, क्या गम, और क्या अल्लाह की मिन्नतें, क्या अल्लाह के सामने जारियां, क्या कैफियत। सुभान अल्लाह। ये है मांगना सिखाना कि किससे मांगना है, किसके सामने हाथ फैलाना है, किसके सामने झोली फैलाना है। अल्लाह पाक हमें अपने दर का रखे, 100 दर से बचाए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज एक तो हमेशा ज़हन में रखें, ये जो लड्डू वाला अमल है ना, 12 लड्डू लोग आके रखते हैं, इससे बहुत मसले हल, मुरादें पूरी, मुश्किलें हल होती। एक लड्डू मुराद का खुद ले लेते हैं, 11 रख जाते। जो लेता है वो कहते हैं अल्लाह मेरी मुराद पूरी होगी, मैं यहाँ लड्डू रख जाऊंगा। इतने बाबरकत अमल है, आप सोच नहीं सकते। और या कहारों का अमल 8 मई, आज कौन सा, आज से शुरू है, पूरी दुनिया करेगी या कहारों का अमल। 120 दिन इंशाअल्लाह। अलविदाई दुआ 12 रबीउल अव्वल में होंगे और अपने हाथों से इसका हदिया आके खुद तकसीम करेंगे, खुद तकसीम करेंगे। और हजरत अली की दुआ का तीसरा चिल्ला है, अल्लाह के वली थे, अल्लाह से मनवाते थे। गुजरावाला में एक दुर्वेश थे, 1874 में उनका विसाल हुआ था, मियां गुलाम रसूल साहब। मेरे सफर होते रहते हैं जिंदगी में, पहला नहीं। अभी मेरा जो सबर में सफर हुआ था, ताशकंद का, बुखारा का, समरकंद का, खीवा का, और फिर अगली पट्टी चली फिरगाना, इंदीजान जहां का बाबर था बादशाह, जो मुगलिया दौर का बानी था बादशाह, इंदीजान, मरहिलान अगला शहर, इंजीर अगला शहर, और फरगाना के बाद कोकंद। ये सारे सफर जिंदगी के। आपसे एक दरखास्त, मैं जब भी इन अल्लाह वालों के पास जाता हूँ, मैं हजरत काब बिन अहबार के यहाँ, हलब या हुमस, शाम में अमन आ गया उस वक्त, बमबारी, मैं उनके काब बिन अहबार के मजार पे गया, और वो हैं जिन्होंने एक दुआ बताई है और जिनके बारे में यहाँ तक अल्फाज हैं, वो अल्फाज अगर वो बयान ना करते तो मेरी जुर्रत ना होती मैं अल्फाज बयान करूं। मकाम अदब है। फरमाते हैं अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता, अगर ये दुआ ना पढ़ता, यहूदी जादूगर मुझे गधा बना देते। अगर वो ये अल्फाज ना कहते, मैं ना कहता। इतनी ताकतवर दुआ है। अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन्हु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना व अलिमतु मिन्हा मा लम आलम मिन शर्रि मा खलक़ा व ज़रअ व बरअ। ज़बर की मेरी गलती हो सकती, पढ़ें तो मेरी भी इस्लाह कर दीजिएगा। ये ताकतवर दुआ है। अल्फाज, हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर दुर्वेश, अल्लाह का नेक बंदा अपने साथ कोई निजाम रखता है दुश्मन को बेहथियार करने का, कि उसकी हर चीज सल्ब करने का, और अपने पास हथियार रखने का, कि दुश्मन के ये वार एक जहरी वार है, लाठी की शक्ल में, खंजर, तलवार, थप्पड़, हाथ पकड़ना, मारना, गोली, एक ये वार है, जाहिरी वार। मैंने आप अर्ज किया ना, दुनिया में जहां सारी हिफाजत का निजाम करके आप कहें मैं मुतमईन हूं, मेरे पास बम प्रूफ गाड़ी है, बम प्रूफ घर है, ऐसे घर के शीशे हैं जहां बम असर नहीं करता, ऐसे घर हैं बम असर नहीं करता, कुछ चीज असर नहीं करती। आप कहें मैं इस हिफाजत के निजाम में हूं, फिर भी मैं कहूंगा हम सब गैर महफूज हैं, हमारी हिफाजत नहीं है, हम सब गैर महफूज हैं, सब गैर महफूज, हमारी कोई हिफाजत नहीं। क्यों? जो जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, ये सारी चीजें हैं, इनके लिए रास्ते होते हैं। चलो, शीशे का घर और कैबन है, उसमें ऑक्सीजन का रास्ता तो रखा जाता है, नहीं रखा जाता। बंदे को शीशे में बंद ही कर दें तो मर ही जाएगा। शीशे का कैबन बनाया ही जिंदगी के लिए जाता है या मरने के लिए बनाया जाता है? जिंदगी के लिए। तो उसमें जादू, जिन्नात, नजर बद, ये चीजें, इसको हम हवाई चीजें हैं, इसलिए तो हवाई चीजें कहते हैं। ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे चली जाती, ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे तहलील हो जाती और अपना काम कर जाती, और अपना काम कर जाती। और इंसान हिफाजत की सारी चीजों के बावजूद भी रोगों, परेशानियों, दुखों, तकलीफों, नाकामियों, मसाइल में मुब्तला हो जाती। सारी चीजों के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद रोगों, परेशानियों, तकलीफों, हालात में मुब्तला हो जाती। एक और वाकया याद आया, आज ये वाकया, इस मौजू पे चीज याद आ रही। मैंने आपको शायद रमजान में एक बात कही थी, शायद रमजान में मेरे हजरत ने फरमाया था, तारिक एक कितमीर मुझे अजियत दे रहा, एक शख्स मुझे अजियत दे रहा है, इसका कोई हल कर। वो आमिल था जो मैंने सबसे पहले उसका हल किया था, उसके अमल सल्ब कर लिए थे, फिर उसने चैलेंज किया था मैं ये करूंगा, ये करूंगा, मुझे तसल्ली थी कुछ नहीं कर सके। सबसे पहले मैंने उसको बेहतियारू किया था, उसके जो अमल थे ना सल्ब कर लिए सारे। जब अमल सल्ब कर लिए, इसकी मिसाल पता है क्या है? बंदूक है, अंदर गोलियां नहीं है, चैम्बर नहीं है सही, बंदूक से क्या करेगा? उसके पास है ही कुछ नहीं। वो बंदूक दिखा के लोगों को खौफजदा कर रहा है, पर बंदूक तो अंदर से खाली है। या कहारों का पानी में इस्तेमाल, या कहारों का पानी में इस्तेमाल। आज एक और अमल बताता हूं, और ये जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, अगर मेरा हाफसा ये जिंदगी में। आपको एक अमल बताया था, रूहानी गुस्ल। जाग रहे? कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने जब भी उन्हें देखा है सोते देखा, क्या हो गया उनके चेहरे पक्के हो गए। फिर क्या करते हैं? जोर से आंखें खोलते हैं, जोर से ना आंखें जोर से खोलते हैं कि नहीं खुली हुई हैं, हालांकि वो सो रही होती। कुछ ऐसे हैं उनके चेहरे पक्के हो गए, शक्लें मुबारक याद हो गई। एक अमल बता रहा हूं मैं आपको, रूहानी गुस्ल का एक अमल बताया था। 6 बिस्मिल्लाह 5 सोते पढ़ के बाहर पढ़े, बैतुल खला में नहीं, अंदर नहीं। तो उसके बाद फिर आप उसमें गुस्ल खाने में जाए, दिल ही दिल में, जुबान से नहीं। और फुकहा के मसाइल का मैंने बकायदा तहकीक की है, ये बात गौर से सुनिएगा। फुकहा के आखिरी 6 सूरतें मैंने पढ़ने को अर्ज किया था बिस्मिल्लाह के साथ। और अगली बात यह है कि फुकहा, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान कराम की बकायदा मैंने मसाइल की तहकीक की है, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूं, मुफ्ती नहीं हूं, मैं सूफी फकीर हूं, इसलिए पूछ के चलने की कोशिश करता हूं। क्यों पूछता हूं? मेरे साथ
कुछ मजमा चल रहा, अगर मैं फिसलूंगा तो मजमा अकेला मैं नहीं फिसलूंगा, पूरा मजमा फिसलेगा। इसलिए हर वजीफे की तहकीक करता हूं, हर वजीफे की सनद और सबूत लेता हूं, फिर भी दावा नहीं कर सकता अपने एक नंबर होने का। वो मौत बताएगी मैं एक नंबर था या 2 नंबर था, मुखलिस था, दुकानदार था या ईमानदार था, वो मौत बताएगी। अल्लाह खात्मा ईमान पे कर ले। बैतुल खला में बैतुल खला की दुआ नहाते हुए, ये रूहानी गुस्ल है, जुबान से नहीं दिल से आप पढ़ सकते हैं। फिर कहें जुबान से नहीं, मुज्तहिदीन ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने ये लिखा है कि आप जुबान से नहीं दिल से पढ़ सकते हैं। आज एक और अमल बताता हूं, मैंने अर्ज किया जिंदगी में, क्योंकि इसका निजाम पानी के साथ है, इसी तरह या कहारो जुबान से नहीं नहाते हुए दिल में पढ़ सकते, ये गुस्ल करें। अच्छा, आज तक छुपाया नहीं, याद ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं अल्लाह की तरफ से अचानक याद आती हैं, जैसे फरमाया कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। आप जब भी गुस्ल करें, जब भी गुस्ल करें, जब भी गुस्ल करें, जैसे वुजू की दुआ, उसका ताल्लुक भी पानी के साथ, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ंबी वस्सी ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। मुझे दुनिया ने, अभी मुझे ये तुर्की कॉन्फ्रेंस में कितने लोगों ने बताया कि वहां एक साहब कहने लगे सारी जिंदगी वहां अगर कोई बंदा छोटा सा घर ले, मौत तक उसकी किस्तें भरते भरते जिंदगी गुजर जाती है। इस वजू की दुआ से मैंने, पता नहीं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कौन सा मुल्क मुझे याद नहीं, उस मुल्क में मैंने बड़ा घर पाया, बगैर किस्तों के पाया, गैर से असबाब मिले, और आज मेरा अपना वहां बड़ा घर है। आप भी आए, मैं कहा इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह लाएगा। बड़ा घर पाया। ये भी वजू की दुआ पानी के दौरान का अमल है, दिल ही दिल में पढ़ने हैं। अच्छा, एक पानी के दौरान का और अमल बताता हूं, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो पानी पे हाथों पे पानी डाले वुजू के लिए और ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, जब तक उसका वुजू रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते 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 थक जाएंगे। इतनी नेकी आप खुद सोचें, पता नहीं कितने 70,000, कितना 1,00,000, कितने फरिश्ते होंगे, और एक ही फरिश्ता काफी है। फरिश्ते की ताकत कितनी, फरिश्ते का कलम कितना, फरिश्ते की रफ्तार कितनी, फरिश्ते की कुव्वत, फरिश्ते कितनी नेकियां लिखेगा। सिर्फ वुजू से पहले आपने क्या करना है, बस इतना लफ्ज पढ़ना है। आप सोचें ये लफ्ज कितना आसान है, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस। ये भी पानी का अमल है, ये भी पानी का। एक पानी का अमल और बताऊं, बारिश के अंदर खड़े होके, अरब का उसूल है, अरब का मिजाज है, जब बारिश आती है बारिश में खड़े होके दुआ मांगते हैं। मेरे आका ने फरमाया बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, जरूरी नहीं उसमें खड़े हो जाए। हाँ, कितने लोग अरब में, अजम में है जो बारिश में खड़े होकर दुआ करते, गर्मी है, मौसम गर्म है, बारिश में खड़े हो दुआ करते हैं। ये भी पानी के दौरान का अमल है। पानी के दौरान का एक और अमल बताऊं, कश्ती की दुआ कौन सी है, बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर, ये पानी के दौरान का अमल। अच्छा, पानी के दौरान का एक और अमल बताऊं, रमाए जब पुल से गुजरो, या रब्बि सल्लिम या रब्बि सल्लिम, या ये पुल की दुआ है, पुल से गुजरो। और बताएं आपके ज़हन में कोई पानी के दौरान का है तो आप भी जरूर। ज़मज़म की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। हाँ, और बताएं जो हदीस में आ रहा है वो बताएं। ये छोटे अमल हैं,